की आशीर्वाद वर्षा हम सब पर बरस रही है। ऐसे जगजयंत गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य सौराष्ट्र केसरी गादीपति श्री गिरीश मुनि जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुवर्या माला सिंह श्री कमलावती जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तनी डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरी गुरुवर्या डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। तपो सम्राट उपप्रवर्तक ध्यान योगी मौन ऐसे श्री भाई महाराज अरुण मुनि जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस कलकत्ता में टोलीगंज में पधारे हुए सधर्मिक भाइयों एवं धर्मनिष्ठ बहनों, चर्चा चल रही है अनुव्रतों की, चर्चा चल रही है महावीर के उस कॉलेज में हमें कैसे अच्छे से अच्छी परसेंटेज में अच्छे से अच्छी जगह पर एडमिशन मिले, इसकी हमारी चर्चा चल रही है कि एक पक्का श्रावक कैसे बने, कैसे हम अपने कर्मों की श्रृंखलाओं को कम करें, कैसे हम अपने कर्मों से दूर होकर शुभ कर्मों को अर्जित करें, कैसे हम हमारे जीवनचर्या को बिना कर्मों के बंधन न बंधते हुए हमारी जीवनचर्या को कैसे निभाए, कैसे दिन की शुरुआत करें कि जा રીતે આપણે કર્મનો जो બંધ છે वो નથી થાય, એનો આપણો શું ચાલુ છે, પ્રયત્ન ચાલુ છે, એની આપણી સ્ટડી ચાલુ છે, એના બદલ આપણા વિચાર ચાલુ છે कि જે પ્રકારે આપણ સવારમાં જ્યારે આપણ બિસ્તરથી નીચે ઉઠો ત્યાં સુધી જ આપણો શું થાય છે, અકાઉન્ટ ખોલી જાય છે અને આપણે પ્રત્યેક કાર્ય સુધી આપણે કરવાનું બંધન થાય છે। પણ એ જગ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી કહે છે કે તમે અલર્પણ થઈ શકો, તમે એક સેકન્ડ સાવધાન થઈ શકો। જ્યા પ્રકારે તમારું જેવા નવજવાની હતી અને તમારા માતા પિતા એક ભવ્ય કાર્યક્રમ આયોજિત કરેલું હતું, ત્યારે તમારા બધા રિશ્તેદાર, બધા મિત્ર, સ્વજન, પરિવાર ત્યારે આવેલા હતા, ત્યારે પંડિતજી તમે કઈ કીધું હતું कि एक सेकंड માટે सावधान, है ना। महाराष्ट्र में जब शादियां होती तब तो बोलते हैं मारवाड़ी हिंदी की तरह, पर आपके इधर भी बोलते होंगे कि एक सेकंड માટે તમારો કઈ વિચાર છે અને જ્યારે સાવધાન કીધું ત્યારે આપણે અગર વિચાર છે તો આપણે નવરીના ગળામાં શું નાખો છો, વરમાળા નાખો છો, નવરદેવ નવરીના ગળામાં નાખે છે અને ત્યારે પ્રોસેસ આગે થાય છે। તો એ જ પ્રકારે પરમાત્મા પણ અનુવ્રતના સાથે આપણે એક ઉદ્બોધન આપ્યું છે, સાવધાન। શું આપ્યું છે? સાવધાન। સાધ્વીજી જ્યારે પ્રવચન ફરમાવતા હતા ત્યારે મને એક સરસની પંક્તિ મજાની મને યાદ આવી, ये दुनिया पैसे की पुजारी, पूजा करते नर और नारी। दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी। जग में पाप कमायो भारी, दुनिया पैसारी पुजारी। अर्थात જ્યારે આપણા જેબમાં પૈસો થાય છે ત્યારે આપણા પડોશી, સ્વજન, સંબંધી એ પૂછે છે, જ્યારે પાસમાં થાય પૈસો ત્યારે પૂછે ભાઈ તમે કઈસો, તમે કઈસો, અને જ્યારે પૈસો નથી થાય ત્યારે હા કોઈ વાત નહીં પછી આપણે શું કરા વાત કરા, ત્યારે હું બીજી છું। તો એ જ પ્રકારે આપણી વાત ચાલુ છે પૃથ્વીકાના જીવોની। કાલે આપણે વાત કરી કે પૃથ્વીકાના જીવોને અગર अपन गाढ़ा बंधन घाला हो, गाढ़ा घाव घाला हो, अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, तो मेरा उसको क्या है, मिच्छामि। पृथ्वी काल के बाद में नंबर आता है अपकाय का, और अपकाय में आता है पानी। अब તમે કહો છો કે મહાસતીજી અમે તો કલકત્તામાં રહીએ છીએ અને અમે ક્યારે પાણીનો આટલો દોષ બાંધી છે, પણ નથી, આપણે દોષનું બંધન થાય છે ક્યારે, એ જે મહિલાએ છે કોઈ દિવસે અજ્ઞાનતામાં જ્યારે ચાવલ દાળ ગરમ કરે છે અને એમાં અગર કદાચ જ્યાદા પાણી થઈ જાય, વધારે પાણી થઈ જાય, એક ગરમા ગરમ પાણી શું કરે છે,
બેસિનમાં એક ગરમ પાણી નાખે છે અને તમને બધાને ખબર છે કે એક બૂંદમાં અનંત જીવોનો શું છે, અનંત જીવોનો વાસ છે. અને જ્યારે એક જે ગટર છે યા જે પાણી છે એનામાં બધા જીવ છે, પણ એ જે પાણી છે એ શું છે, એ ઠંડુ છે. અને આપણે જે ગરમ ચાવલનો યા દાળનો વધારે પાણી બચ્યું છે આપણ એકદમ કઈ કરો છો, એને ડાયરેક્ટ બેસિનમાં આપણ ઉકળી દે છો, ત્યારે આપણે શું લાગે છે, સચિત और અચિત પાણી का આપણે દોષ લાગે છે. ઠંડો અને ગરમ આપણ જ્યારે ભેલો કરો છો ત્યારે પણ આપણને શું લાગે છે, એનો દોષ લાગે છે કે ઠંડા પાણીમાં જીવ હતા અને જ્યારે સુધી આપણે એના ઉપર ગરમ પાણી નાખ્યું ત્યારે એ દોષ બધો એ તમારી ગ્રસ્ત સ્વામીને નથી લાગતું, એ તો શું છે, એ સામૂહિક થઈ ગયેલું છે. પણ જ્યારે પરમાત્મા આપણે બતાવેલું છે કે અગર તાલો કેટલો પણ મોટો થાય, કેટલું મોટો તાલો થાય, પણ એની ચાવી શું છે, શું કેટલી कितना होता है, छोटा होता है. चाबी बड़े ताले की चाबी छोटी होती है. ज्या प्रमाणे આપણા દોષ વધારે થાય પણ એના માટે ચાવી પણ આપણા પાસે ચાવી છે. એ ચાવી શું, જીનવાની રૂપી ચાવી, પરમાત્મા की જીનવાની રૂપી ચાવી આપણા પાસે છે. એનો આપણે શું કરવું જોઈએ, ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અગર આપણે પાસે એકાદું બર્તન આપણું ઘસવાનું છે, એના ઉપર આપણે એ થોડા વખત એક અગર પાણી આપણે રાખ્યું તો આપણે દોષ લાગશે નથી અને આપણ દોષથી વધી જશે. એ જીવોની હિંસાથી આપણ શું થઈ જશે, બચી જશે. પણ એના માટે ચાવીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એના માટે વિવેકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. एक बार हिंदी में एक बहुत ही सुंदर एक पंक्ति आती है, जिस पंक्ति को गाते वक्त आंखों से अश्रु आ जाते हैं. कर्म बांधे हैं हंस हंस के सारे, अपनी आत्मा को जरा समझा ले. हो कर्म बांधे हैं हंस हंस के सारे, अपनी आत्मा को तू समझा ले. कर ले आत्मा से प्रीत आखिर तेरी ही जीत, कर ले आत्मा से प्रीत आखिर तेरी ही जीत. ये कर ले तू करतूत ये भारी, चंद्रमा रात आधी. अर्थात આપણે અગર વિવેકની અગર ચાવી અગર વાપરી દેનો તો આપણે શું થશે, કર્મોનું બંધન નથી થશે. એને આપણે આજે તમારા સુધી પણ એવું થાય છે કે તમે જ્યારે તમે નયા સસુરાલમાં આવ્યા અને તમે નાનથી તમે મોટા થયા પણ તમારે મમ્મી પપ્પા તમને કઈ એક કપડું પણ ઉઠાવવાનું કામ નથી કીધું, એક બર્તન ઘસવાનું કામ નથી કીધું. અને જ્યારે તમે સાસ સસુર દેર જેઠાણી અને તમારા જે મહાશય પતિ મહાશય જ્યારે તમને કામ કહેતા હતા ત્યાં તો દિવસ યાદ કરો, તમારા એક આંખમાં શું થતું હતું, अश्रु बहता હતું, तुम आंसू बहते थे कि मैंने कभी अपने कान से ऊंची आवाज नहीं सुनी, मैंने अपनी मम्मी के घर पे कभी काम नहीं किया, पर आज मुझे क्या करना पड़ रहा है. सुबह 6 बजे उठकर शाम को 6 बजे तक मेरी क्या लगी रहती है, ड्यूटी लगी रहती है. पर परमात्मा कहते हैं ड्यूटी ड्यूटी क्या लगा रखा है, ड्यूटी ड्यूटी क्या लगा रखा है. अगर आपने अनुव्रतों को ग्रहण किया आपकी लाइफ हो जाएगी ब्यूटी, आपकी लाइफ हो जाएगी ब्यूटी. પણ એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, એક ચાવીને આપણે અહીંયા હંમેશા એક डोरी से बांधकर अपने को रखना चाहिए. कौन सी चावी, विवेक वाली चावी. अब તમે કહો છો કે મારા સા અત્યારે આપણે પાણીનો કોણતા કર્મ બાંધે છે, તો સ્વજન મિત્રજન પરિવાર એ કહે છે તમને ફોન કરીને કે બધા છોકરા છોકરીને છુટ્ટી લાગેલી છે અને અત્યારે વેકેશનમાં શું કરવાનું છે, જવાનું છે. અને વેકેશનમાં ક્યાં જાઓ છો, સ્વિમિંગ પૂલ. ક્યાં જાઓ છો, સ્વિમિંગ પૂલ.
અને સ્વિમિંગ પુલમાં એટલું પાણી ત્યાં સ્ટોરેજ છે અને એ પાણીમાં બધા શું કરો છો? એન્જોય. શું કરો છો? એન્જોય. પર એ ભલે ही નાના છોકરા છોકરી માટે એન્જોય હશે, પણ અત્યારે તમે સમજદાર છો, તમે જીન શાસનના સેવક છો, તમે પક્કા શ્રાવક શ્રાવિકા છો, એ તમારા માટે એન્જોય નથી. એ તો તમારું કર્મનું બધું જ શું છે? કર્મનું બંધન છે. જ્યાં પ્રકારે એક આંખમાંથી તમે સો આંસુ જ્યારે આવશે ત્યારે એ પ્રસંગ તમને યાદ આવશે. કોણ તો? हंस हंस बांधता नहीं कुछ भी जानता, हंस हंस बांधता नहीं कुछ भी जानता, उदय में आसी रे नाच नचासी रे, उदय में आसी रे नाच नचासी रे. काले હું एक किताब पढ़ती थी, एनामा मैंने एक प्रसंग, एक बहुत ही सुंदर मुझे उसमें प्रसंग मिला कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही सामायिक का प्रसंग क्यों चुना कि सामायिक जो है वो हमारी नींव है और ऐसी सामायिक हो जाए. बार बार सामायिक की चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हृदय का दर्द है, मेरे हृदय का दुख है. आपकी सामायिक, एक सामायिक, वो पुण्य वाली सामायिक आपकी हो जाए. आप भी ऐसे लखपति बन जाओ कि आ जाए कोई सैनिक और कहे हमारा भावना बहन ने, जोशना बहन ने, हमारा मामी ने कि તમારી સામાયિક હું શું કરવાનું છું? ખરીદવાનું છું. એ અમારા મામી કહે कि મારી સામાયિક એટલી મોંઘી છે કે તમારો જે ધન દોલત છે તમે બધી આપી દો, પણ તરી પણ તમે સિર્ફ દલાલી તકી પહોંચી શકો છો. સામાયિક ખરીદવાની તમારી औकात ए सामायिक જોઈએ, ए सामायिक થવાની જોઈએ. सामायिक केवल सामायिक नहीं है, सामायिक वो चीज है जो हमारे साधना की नींव है. सामायिक वो चीज है जो हमें समझ कर साधना की गुफा में ले जाने का हमारा प्रोसेस है. एक सामायिक ऐसी हो जाए कि जिसमें भले ही दुख आए सुख आए, यहाँ पर एक कहते हैं कि लाभो लाभे सुहे दुहे, अर्थात जीवन में लाभ आए, लोभ आए, दुख आए, संकट आए, पर सामायिक ऐसी हो जाए कि निश्चल हो जाए, जैसे कि एकदम पक्की सामायिक हो जाए उस पर्वत की तरह कि लाख तूफान आए, लाख झपेटे आए, पर वो पर्वत कभी हिलता है नहीं. तो सेम मैं चाहती हूँ कि आपकी भी सामायिक ऐसी हो जाए कि आपको कोई कितना भी कहे कि ત્યારે બહુ મોટો કાર્યક્રમ છે, એને 1000 રૂપિયાની એ રાખી છે, એ વગેરે कुछ એ પ્રલોભન રાખ્યું છે, પણ અમારી જોશનાબેન, ભાવનાબેન, ટીના, મીનાબેન એ લાલ સાડી, પીલી સાડી, નીલી સાડી એ બેના અમારા કહે कि અમે તો ટોલીગંજ છોડીને કયા જવાના નથી, અમે તો અહીંયા જ રહેવાનું છે. અમારી જે સામાયિક છે એ પુણ્યની શું થવાની છે? સામાયિક થવાની છે. આપણે જોયું કે ગરમ પાણીમાં ઠંડો પાણી મિક્સ કરવાનું નથી. આપણે જોયું કે સ્વિમિંગ પુલમાં અત્યારે જેટલી બેના બેઠી છે એ બધા બેન આપણે મનથી સંકલ્પ લઈયો कि હું આજ સુધી ભલે ही કેટલા સ્વિમિંગ પુલમાં હું એ ટચ કર્યું હતું પાણીને, એમાં એન્જોય કર્યો હતું, પણ આજના પછી હું સ્વિમિંગ પુલમાં નહાવાની નથી, સ્વિમિંગ પુલમાં જવાની નથી અને કોઈને અનુમોદન પણ કરવાની નથી. पृथ्वी काय, अब काय, उसके बाद आता है नंबर 3 का. हाँ, पानी का मुझे याद आया कि पानी 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 कर्मों का बंधन करता है, पर पानी से पुण्य का भी बंधन होता है. मुझे याद आ रहा है 2000 हमारा 6 का चौमासा सूरत में था. ત્યારે 2008 નો ત્યારે એકતા ભાઈ હતા નરેશભાઈ દોશી, એ અમારા સાથે દર્શનના માટે અમે જ્યારે વિહાર કરે ત્યાં દર્શન માટે આવ્યા અને એમને કહે છે કે માં સતીજી મારા ગાડીમાં જ્યાં સુધી હું બહાર નીકળું છું ત્યાં સુધી કેવળ 2 લીટરની બિસ્લરી બોટલ લઈને નથી નીકળતું, હું પૂરો 5 લીટરનો કેન લઈને નીકળું છું અને એ જો કેન છે ને એ ગરમ પાણીનો થાય છે.
મારા ગાડીમાં એક ધોવન પાણી માટે પણ એક રાખ, લવંગ, ઇલાયચી થાય છે કે જ્યારે હું પાણીને બહેરાઈને શું કરું? પુણ્યનો लाभ उठाऊं। जहाँ सुधी पानी अगर पाप कर्म बांधने का अगर प्रयोजन है तो पानी ना सुधी આપણે કર્મ નિર્જરાપન થાય છે, પણ એ વિવેકની ચાવી જ્યારે કમરમાં થાય છે તો એ શેઠાણિયા કોઈ દિવસે હારતી નથી, કોઈ દિવસે હાર માનતી નથી, એ હંમેશા શું થાય છે? વિજયી થાય છે। પણ આપણે શું કરવું જોઈએ? જ્યાં સુધી આપણે અહીંયાથી અમદાવાદ જાઓ या कहीं पर घूमने जाओ, जैसे समेत शिखर जाओ, अपना गाड़ी में एक छोटा सा कैन, एक 2-3 इलायची कि जिससे हम पानी को धोवन करके मारा साहब को क्या करते? बहरा दे। हम इसी पानी से कर्म का बंधन न करते हुए हम उस पानी से क्या करें? बहुत महिलाओं को आदत होती है बिस्लरी पानी जो होता है वो पानी की बोतल से पानी पीते हैं और आधी बोतल उसका ढक्कन लगा के उसे ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। मुझे बताइए वो पानी कितने दिन तक पड़ा रहेगा और उसका सारा के सारा पाप किसको लगेगा? कम से कम आपने अगर उसका उपयोग किया है तो उस पानी की बोतल का पूरा पानी पिए, उसका विवेक रखे। उसमें पानी अगर खत्म हो गया है तो उसे उल्टा करके रख दे या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दे। पर अगर पानी आधा पिया है, आधा ऐसे बंद करके रखोगे, उसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होगी और उसका सारा पाप किसको लगेगा? हमें लगेगा। इतिहास के झरोखों में अगर हम देखते हैं तो याद आता है वो प्रसंग कि एक राजा रानी यात्रा के लिए निकले थे और वन भ्रमण में जब वो गपशप कर रहे थे, डांस कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे लाइफ को लेकर, तब रानी और राजा कहते हैं कि जो तमे અત્યારે અંગૂર ધોયેલા છે એ પાણી તમે ઢાંકીને એક સાઈડમાં મૂકી દો। એ પાણી મૂકી દે છે, એ પાણીનું વધારે મૂલ્ય નથી, પણ કદાચ એનો ઉપયોગ અગર લાગે એના માટે પાણી શું કર દો? સાઈડમાં મૂકી દો। એને ઢોલતા નથી, એને સાંડતા નથી, એને વેસ્ટ કરતા નથી। રાજા રાણીને આદેશ આપ્યા પછી એ પાણી સાઈડમાં રાખેલો છે। બધા જ રાજા રાણી એન્જોય કરે છે, ઝૂલા ઝૂલે છે, ગાણા ગાય છે વગેરે બધા કંઈ કરે છે। કારણ કે હું કંઈ એવું એન્જોય કર્યું નથી, હું નાની ઉંમરમાં દીક્ષા લીધી છે। તમને એન્જોયના બધા જ તમને શું ખબર છે? તમને બધું જ ખબર છે કે એન્જોય શું થાય છે અને એ કઈ કઈ કરે છે। અને એ પ્રકારે એ પાણી સાઈડમાં રાખેલું છે। એને થોડા દેર પછી એ દૂરથી જોયું कि एक महान संत, एक योगी, एक तपस्वी એટલા ધૂપથી વનમાંથી રસ્તો ભટકીને અહીંયા કયા દેખે છે કે મને માર્ગ કઈ સાંભળતો નથી અને કોઈ મને અહીંયા દેખાતું નથી। અને એ મુનિરાજ જ્યારે અહીંયા इधर उधर देख रहे हैं, उसी समय में राजा रानी की दृष्टि पड़ी कि मुनि अभी गिरे कि तभी गिरे। એટલી ધૂપથી એને તપસ્યામાં એને ચક્કર આવતા હતા અને કમજોરી આવી હતી। એ જ્યારે રાજા એને લાવે છે અને એના પાત્રામાં એ અંગૂરનો પાણી ભરાય છે। એ પ્રસંગે લેખક लिखे છે कि એ પાણી વેરાવાના કારણે રાજાને તીર્થંકર કર્મ को શું બાંધી લીધો? बंधन बांधी लीधो। केवल पानी जो छे अगर कर्मों का अगर बंधन का कारण है तो पानी कर्म तोड़ने का भी कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी है विवेक। पृथ्वी का अपकार तिवकार આપણે ઘરોમાં બધા જ એવ લાઈટ છે કે આપણે જરૂરત નથી, પણ આપણે એ વિચાર કરે છે એ લાઈટ તો બહુ લગાવ્યું છે, અત્યારે હું કેમ બંધ કરું? એ હું કેમ બંધ કરું? એ છોકરા છોકરી કીધેલું છે, એને સમજવું જોઈએ। ભલે કે શ્રાવકજી એનો બિલ ભરતા જાય, પણ આપણો અહમ कि ए लाइट कोई बंद करवा करतो નથી। સોસાયટીમાં કઈ વાર એ થાય છે કે સોસાયટીના લાઈટ ચાલુ થાય છે અને એને બંધ કરવાની આપણે શું નથી ઉઠતી, ઉગત નથી ઉઠતી। આપણે એક જ વિચારાય છે कि मुझे क्या करना है, जिसका जो जाने, जिसको जो बिल भरना है वो क्या करेगा? भरेगा। पर नहीं, कर्मों के बंधन से अगर बचना है तो इतना सा विवेक जरूरी है।
कई बार हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा ठंडी बजती है तब हम एक अंगीठी जलाए छे, एक छोटा सा 2-4 लकड़ियां मिलके जलाते हैं और उसको हम भी क्या करते हैं, सेक करते हैं। पण त्या સુધી તેવું काय જીવોની શું થાય છે, હિંસા થાય છે અને એ હિંસાના આપણ પણ શું થાય છે, કારણ થાય છે। એક વારની ઘટના છે, એક મહિલા એના પતિ મહોદયને કીધું કે તમે જ્યારે ઘરે આવો ત્યારે બજારથી શું લાવવાનું છે, તમને ભીંડી લાવવાની છે। શું લાવવાની છે? સબ્જી કાંઈ વગેરે છે તો લઈ આવો તમે। એ લઈને આવે, એ પુરુષ अपने टीवी के रूम में बैठा रहता है, महिला सब्जी बनाती है और महिला अचानक सब्जी बनाते बनाते जब भरमा भिंडी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा कोथिंबीर भरते भरते अचानक वो चाकू महिला की इस उंगली पे लग जाता है और वो जो नमक और वो मसाले का जो तीखा रहता है वो उसके उंगली में क्या हो जाता है साहब, चला जाता है और उसे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। वो भी करती है वो, पर पति महाशय न्यूज़पेपर एंड मोबाइल में એટલા બીજી છે કે એમને કઈ ખબર પડી નથી। થોડા વખત પછી ભેંડી બનીને બારે આવે છે અને જ્યારે એકદમ ગુજરાતી પતલા પતલા થેપલા અને ભેંડી જ્યારે એ અમારા શ્રાવકજી એનો લાભ લે છે ત્યારે કહે છે कि जोशना बेन તમારી ભીંડી શું થઈ ગઈ છે, સરસ થઈ છે, शाकाहारी थैली छे, एकदम मन जैसा खाना बना है, एकदम मन जैसा क्या हुआ है, आज लाभ उठाया है। और तत्काल श्रीमती जी बेलन लेके क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं कि तमने ભીંડીનો સ્વાદ તમને એકદમ સરસ લાગે છે, પણ મારા હાથમાં જે ચોટ લાગેલી છે એનો તમે શું કરી શકો, તમને દેખાતું નથી, તમને એનો કઈ મજાક તમને કઈ આવવાનું નથી वगैरह वगैरह ऐसा बोलती है। तो बंधुओं, जो दर्द हुआ था, जो तकलीफ हुई थी, जैसे उस महिला की उंगली को तकलीफ हुई थी, सेम उन जीवों को भी क्या होती है, तकलीफ होती है। पर अगर विवेक अगर हम रखते हैं तो क्या हो सकता है, कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। पृथ्वी का, अवकाश, देव का, वायु का, कई बार पंखे चलते हैं और पंखे छोड़ के हम क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और स्थानक में भी कई बार पंखे चलते हैं, घरों में चलते हैं और वायु का जीव की हिंसा होती है, परंतु हमारा उसकी तरफ ध्यान रहता नहीं है। पर अगर वायु का जीव के प्रति अगर हमने कृतज्ञता व्यक्त की, अगर हमने उसके प्रति माफी मांगी, इच्छा में दुबरान दिया, तो उसका क्या हो सकता है, बंधन कम हो सकता है। और अलग अलग तरह की हवा है, पूर्व की हवा, पश्चिम की हवा, उत्तर की हवा, दक्षिण की हवा। कई बार हमारे कारण के कारण बड़ी बड़े जो धान होते हैं, बड़ी बड़ी सब्जियां होती है, वो सभी भी क्या कर की जाती है, सुखाई जाती है, उसमें भी हवा का उपयोग होता है, उसमें भी कर्म का बंधन होता है। और अगर वो चीज अगर हम उपयोग में लाते हैं तो उसकी भागीदारी कौन है, हम भी है। पर परमात्मा का सिद्धांत इतना सुपर फाइन है कि अगर हमने माफी मांगी तो कम से कम हमारे गाढ़े कर्मों का बंधन होगा नहीं ना। तो परमात्मा के सिद्धांतों को हमेशा याद रखना है। पृथ्वी का, अब का, तेव का, आगे क्या आता है, वायु का, उसके बाद में आता है वनस्पति का। अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, वनस्पति का जीवों की हिंसा करते हैं। यहाँ पर लेखक ने बड़ा ही सुंदर कहा है, शुष्मानि जंतुनि जलाश्रयानि जलस्य वर्णाकृति यस्तितानि तस्या जल जीव दया निमित्य, अर्थात हमारे निमित्त से कई जीवों की क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। और हाँ, यहाँ पे लेखक ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि जो पानी है, जो अवकाय के जीव है, उसकी विराधना हम इतनी करते हैं कि कई बार हम पानी को छाने बिना ही क्या हो जाते हैं, पी लेते हैं। यहाँ पर एक लेखक ने कहा है, जैनी होकर जीना न जाना, जैनी होकर जीना न जाना, हाय राम रात को खाए खाना, हाय राम रात को खाए
है, अगर प्रमाद को अगर त्यागना है, हिंसा से अगर दूर रहना है, तो इन पृथ्वी का वायु का जीवों की क्या करनी पड़ेगी? विराधना कम करनी पड़ेगी। और विराधना कैसे कम होगी? विवेक के साथ। याद आता है हमें बड़ी साधु वंदना का वो एक सुंदर सा कि जारे खंडक ऋषि ने हंसते हंसते कर्म का क्या कर दिया था? बंधन कर दिया था। यहाँ पर जयमल जी महाराज साथ लिखित बड़ी साधु वंदना का पाठ आता है, वली खंडक ऋषिनी देह उतारी खाल, परिसह सहीने फेर दियो भवटाल। अर्थात उन्होंने अपने परिसरों को सहन किया, पर बात उस समय की है जब अपने मित्रों के साथ जब वो बैठे थे और मित्रों को अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, हंसते हंसते बता रहे थे कि देखो ये कांचरी का जो फल है, मेरे अंदर इतना दिमाग है, इतना टैलेंट है कि मैं इसका छिलका अखंड तरीके से क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। मेरे अंदर इतना टैलेंट है। और उसका छिलका निकाला, हंसने लगे, बड़े उसकी प्रशंसा होने लगी चारों तरफ से। परंतु लेखक कहता है ना, हंस हंस बांधता फिर भी नहीं जानता, हंस हंस बांधता फिर भी नहीं जानता, उदय मेरा सिरे नाच नचासी रे, उदय मेरा सिरे नाच नचासी रे। निष्प्रयोजन हिंसा जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी हिंसा आजकल की महिलाएं भी कई बार अपने घरों में करती है। जब कभी घरों में 4 मेहमान आते हैं, तब बड़े अच्छे से तरबूज, खरबूज, टमाटो, ककड़ी अलग अलग तरह से क्या करती हैं। परंतु ये काम हम जैन लोगों का नहीं है। हमारे परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि वनस्पति का भले ही आपके पेट की अग्नि को शांत कर रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रशंसा कर कर अपने कर्मों का क्या कर दो? बंधन करो। महिलाओं, जब सुबह भोजनशाला में जाओ, भोजनशाला का नया नाम क्या है आजकल? भूल कर भी उसे किचन मत कहना। गुरुवरिया अपने वास्तु शांति के क्लास में कहती है कि जो व्यक्ति अपने भोजनशाला को किचन कहता है, वहां पर हमेशा क्या होती रहती है? किच किच होती है। इसलिए उसका नाम क्या रखा है? किचन रखा है। परंतु अगर हमारे आगमों में अगर देखो तो उसका नाम किचन नहीं है, उसका नाम आता है पाकशाला, या फिर भोजनशाला बोलो, या फिर हमारे रसोई घर बोलो। इतने सुंदर सुंदर शब्द है, मत बोलो अपनी भोजनशाला को किचन। किचन से याद आया मुझे कि जब भोजनशाला में जाते हो तो भूल कर भी चप्पल अपनी भोजनशाला में लेकर नहीं जाना, कि जिसके कारण वहां पर अग्नि का जीवों का वास है। और अगर तुम चप्पल पहन के जाते हो तो चप्पल राहु और केतु का प्रतीक होता है। और जहां पर चप्पल होता है और जहां पर अग्निका के जीव है, अर्थात वहां पर आपका क्या हो रहा है? ग्रह दोष बन रहा है। वहां पर आपकी कर्मों का बंधन तो हो ही रहा है, परंतु आपका जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार भी वहां पर क्या बन रहा है? ग्रह दोष बन रहा है। जिस वजह से अगर पैरों में तकलीफ भी है तो कपड़े के मोजड़िया पहनो, परंतु आजकल जो चल रही है चप्पलें पहनकर भोजनशाला में जाने का नहीं, कि जिस वजह से हमारे घर की शांति भंग हो, ऐसा काम करने का नहीं। याद आ रहा है वो खंडक ऋषि अपने दोस्तों के साथ बैठकर उस कांचरी को इतना अच्छे से वो कर रहा है, हंस रहा है, प्रशंसा कर रहा है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि जब जैसे जैसे काल व्यतीत हुआ, जैसे जैसे समय पूरा हुआ, तो वो कर्मों का दुगना तिगना चौगना। आपने देखा होगा पूर्व जमाने में एक लगान करके मूवी भी आई थी, प्रेमचंद की भी एक पुस्तक है लेखक की, लगान करके। अर्थात ये लगान जो ऐसी चीज है कि बढ़ते 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 सब कुछ क्या हो जाता है, एक दिन
खत्म हो जाता है, हमारी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, लगान ऐसा बढ़ता है, चक्रवर्ती ब्याज ऐसा बढ़ता है कि उस ब्याज को हम मर भी जाए, हमारे पोता भी पोती भी उस ब्याज को कभी भी चुका सकते। तो क्यों हम इन कर्मों का बंधन कर रहे हैं कि जब हमें क्या करना पड़ेगा, रोते रोते कर्मों से छुटकारा फिर भी नहीं मिल पाएगा। पर अगर हम इन चीजों की प्रशंसा ना करें, अगर आपके घरों में भी भाषा का अगर विवेक रखा, दूसरी भाषा समिति में 8 प्रकार की भाषा का परमात्मा ने कहा है, कर्कोशकारी, कठोरकारी, छेदनकारी, भेदनकारी, मर्मकारी, मोसाकारी, सावध्यकारी और निश्चयकारी। अर्थात भाषा का भी ऐसा उपयोग किया जाए कि जिससे कर्मों का क्या न हो, बंधन न हो। कभी भी हंसते हंसते ऐसा न कहो कि मैंने देखो कितना अच्छा बनाया है, ऐसा कहो कि ये चीज साताकारी बनी है। कई बार मैंने देखा है यहाँ पर भी जब महिलाएं गोचरी पहनाने आती है तब वो एक शब्द का प्रयोग करती है, मारसा पकोड़े एकदम गर्मा गर्म है। क्या बोलती है? पकोड़े एकदम गर्मा गर्म है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, हमें दोष लगेगा। ऐसा बोलना है कि मारसा ये वस्तु साताकारी है, आप इसका उपयोग में इसको ला सकते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शब्द शब्द का बड़ा मोल है, शब्द शब्दों में कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। बार बार कह रही हूँ, बड़े बड़े तालों की छोटी सी चाबी है, उसका नाम है विवेक। क्या नाम है? विवेक। अगर विवेक के साथ अगर काम लिया तो कर्मों के बंधन से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं और पक्के श्रावक हम बन सकते हैं। और बंधुओं, 14 लाख साधारण वनस्पति काल और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काल। वनस्पति काल में भी अलग अलग तरह के जीव है, जैसे गेहूं है, चना है जिसमें एक ही बीज है, और चिक्कू में भी 1 या 2 बीज है, आम में भी 1 बीज है। अर्थात ये जो बहुबीज नहीं है, इसमें लिमिटेड बीज है। परंतु दाड़िम और सीताफल जिसमें बहुबीज है, इन चीजों को चलो ठीक है, परंतु आलू प्याज जो है उसमें अनंत क्या है, जीव है, अनंत काय जीव है। इसलिए परमात्मा ने इन चीजों को खाने के लिए हमें क्या कर दिया है, निषेध किया है, वंचित किया है। ये चीजें हमारे खाने योग्य नहीं है कि जिसमें अनंत जीव है, अर्थात कर्मों के बंधन भी क्या है, ज्यादा है। हमारा कोई भी कदम, कोई भी स्टेप ऐसा ना हो कि जिसमें कर्मों के बंधन अधिक हो। और सुबह उठकर सभी को एक एक पंक्ति अभी याद भी कराएंगे, आपको भजन आपके पास कागज भी दे देंगे, पर उस भजन को बार बार क्या करना है, दोहराना है। कौन सा? क्योंकि सुबह उठ के हम पृथ्वी का, अप का, देव का, वायु का, वनस्पति का, इन सभी जीवों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। ये तो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, परंतु हम इनका पल पल में क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं, बार बार उपयोग लेते हैं। कभी खाने के बहाने, कभी नहाने के बहाने, और कभी हमारे टाइम पास के बहाने। इन सारे जीवों का हमारे जीवन में उपयोग है। पर परमात्मा ने विवेक रूपी चाबी जो दी है, उसका अगर उपयोग किया जाए तो कर्मों के बंधन से क्या हो जाएंगे, छुटकारा पा सकते हैं, कर्मों की श्रेणी को कम कर सकते हैं। जैसे कल ही कहा था कि एक साइकिल वाला रहता है, एक आप रहते हैं, आपको स्थानक में आने की जल्दी रहती है, वो बंदा आपको जगह दे देता है, पर आप क्या करते हो, उसे धक्का मार देते हो और आगे चले जाते हो। वो व्यक्ति सोचेगा कैसा ये भाई है कि मैंने इसकी मदद की, मैंने इसको सहयोग दिया, मैंने इसे रास्ता दिया, और इसने मुझे धक्का मार के क्या चला गया, आगे चला गया। नहीं नहीं, हम वो बने कि हमेशा उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करें, हम वो बने हमेशा थैंक्स कहें कि मेरे परिवार को आज भोजन मिला है, हे परमात्मा तेरी कृपा, आज पीने को पानी मिला है, हे परमात्मा तेरी कृपा, आज लेने को अच्छे से सांस मिला है, ऑक्सीजन मिला है, हे परमात्मा तेरी कृपा। इसी कृपा के लिए यहाँ पर एक सुंदर सा भजन लिखा गया है। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद,
पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अर्थात इन सब का हमें हमारे जीवन में संयोग मिला है, इसी के कारण हम जीवित है। अगर हम जैसे माँ के गर्भ में आए तो सबसे पहले आहार लिया, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, अर्थात हम जैसे सबसे स्टार्टिंग ही हमारी क्या हुई है, आहार से हुई है। हमारे आहार के लिए उन्होंने अपना क्या दिया है, बलिदान दिया है। हमारे कारण ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। हम जीवित है उन्हीं के उपयोग की वजह से है। पर अगर हमने बार बार अगर थैंक्स किया, बार बार अगर मिच्छा में दुक्कड़म दिया, तो बंधु वो इतने गाढ़े कर्मों का बंधन नहीं होगा और ना ही वो निगोद की यात्रा हमारी वापस चालू होगी। सिद्ध परमात्मा की अनेक अनेक शुक्रिया है कि उनकी वजह से आज मानव भाव मिला, जैन कुल मिला। पर फिर भी हम अज्ञानता के कारण क्या कर रहे हैं, भूले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। 4 अंगुल की डोर आपके हाथ में है, अभी भी चौमासा आपके हाथ में है। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, फोन घुमाइए, कहिए उन लोगों को जो अपने घरों में आराम से बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, उनके बेटे ऑफिस जाते हैं, वो मस्तबे की टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्तबे की सोए हैं, कुछ काम नहीं है। 1 घंटा तो हर व्यक्ति क्या निकाल सकता है, समय निकाल सकता है। कर्मों से बचना अगर है तो प्रवचन में आना होगा, जिनवानी को सुनना होगा। जब भी कभी कर्मों के बंधन का ऐसा कोई टीवी प्रोग्राम हमारे सामने आए और परमात्मा की ये बात याद आ जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे विवेक से काम देना है, मुझे जिनवानी का उपयोग लगाना है, मुझे कर्मों से बचना है, तो हमारे कर्मों के बंधन भी क्या हो जाएंगे बंधुओं, कम हो जाएंगे। परंतु उसके लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, हंस हंस बांधता फिर भी नहीं जानता, उदय में आती रे नाच न जाती रे। अर्थात एक कर्म जब उदय में आएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहुत दुख होगा। उससे पहले जिनवानी को श्रवण कर ले। टोलीगंज में बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है, बड़ा ही सुंदर भवन बनाया है और केवल आपके लिए बनाया है, केवल और केवल श्राविकाओं के लिए बना है, श्रावकों के लिए बना है। बस देरी क्या है, बस देरी अपने घर से निकलने की है, बस देरी प्रमाद को छोड़ने की है, यहाँ तक आने की है। अगर यहाँ तक आने का अगर आपका क्रम रहा तो क्या हो जाएगा, कर्मों का बंधन कम हो जाएगा और बहुत ही हमें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। एक भजन कहकर अपने शब्दों को यही विराम लेती हूँ। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि सत्य मधुर ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। बोलो तो पहले तोलो फिर मुंह का ताला खोला करना, अमृत पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि घर न किसी का बांध सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल न सको तो अंधकार भी मत करना। यदि फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर न बिखर जाना, अमृत पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि पुष्प अगर भगवान नहीं तो कम से कम इंसान बनो, यदि पुष्प अगर भगवान नहीं तो कम से कम इंसान बनो। किंतु कभी ना शैतान बनो, ना कभी हैवान बनो। यदि सदाचार अपना न सको तो पाप में पग पग ही रखना,
अमृत पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। याद आ रहा है एक प्रसंग कि जहाँ पर वनस्पति काय का हमारे साथ कितना संबंध होता है। जहाँ पर रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और वे अपने कथानक में जो स्टार्ट करते हैं तब कहते हैं कि ये जो वनस्पति का ये जीव है, ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये तक मेरे क्या है, सहायक है, इन्होंने तक मेरी मदद की है, ये बताने के लिए। और ये प्रकृति माता हमारी हमेशा क्या करती है, मदद करती है। अर्थात हमारे जैन धर्म में पृथ्वी काय का अनंत महत्व है। इन 6 काय जीवों के लिए एक गृहस्थ साधु जीवन को धारण करता ही है, परंतु वैष्णव धर्म में भी पृथ्वी काय के जीवों का अधिक क्या है, महत्व है। यहाँ पर लिखते हैं विश्वामित्र ऋषि, दुर्वासा ऋषि, भारद्वाज भी इस निसर्ग की मदद से अपने साधु जीवन को क्या करते थे, जीते थे, अपने संन्यास में जीवन को जीते थे। अर्थात जहाँ कहीं पर ये पृथ्वी है, ये पानी है, ये हवा है, भले ही ये हमारे उपयोगी है, पर आपको खुद को पता है कि अगर इसका उपयोग अगर हमने गलत काम पे लगाया तो ये पृथ्वी, ये पानी, ये हवा, ये जितने उपयोगी है, विनाश भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। परंतु हम इन हिंसा से बचे, निष्प्रयोजन से बचे। अगर आपको जरूरत नहीं है, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदतें होती है, नन्हे नन्हे पत्तों को तोड़कर से क्या कर देते हैं, मचोड़कर फेंक देते हैं। ये निष्प्रयोजन क्या है बंधुओं, हिंसा है। पहला स्थूल प्राणातिपात हमें यही समझाता है कि निष्प्रयोजन हिंसा हमें नहीं करनी है। और कदाच मैंने पूर्व भाव में, कदाच कोई भाव में, इस भाव में, बालपन में, यौवन में, जाने अनजाने में है, मन वचन काया से अगर किया हो, कराया हो, अनुमोदन किया हो, तो आज अभी इसी क्षण मैं उसका क्या देता हूँ, अगर बंधुओं आप अगर बार बार अगर ऐसा कहकर भिक्षा में दुग्धम दोगे तो वैज्ञानिक तब कहते हैं कि अगर आप निसर्ग का ग्रहण को व्यक्त करते हैं, आप मन से एकदम रिलैक्स होते हो, आप वचनों से रिलैक्स होते हैं, आप माइंड से, काया से रिलैक्स होते हैं। और आपको मैं बताती हूँ कोई दवाई वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। हमारा जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद है हमारा, वो यही कहता है कि इस निसर्ग के प्रति अगर आपने अपना ऋण व्यक्त किया, अपना अगर आपने उनके प्रति आभार व्यक्त किया, आभार व्यक्त करना हो या प्राणातिपात में आवश्यक सूत्र को फेरना हो, दोनों सेम है, केवल उसकी प्रोसेस अलग अलग है। बाकी आपने देखा होगा कि 6 बजे जब संधिकाल होता है तब मंदिरों में भी घंटियों की आवाज सुनाई देती है। मतलब जब संधिकाल होता है, ये घड़ी से उस घड़ी में जब प्रवेश होता है, तब आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति प्रार्थना में लग जाता है, क्योंकि वो संधिकाल का समय ऐसा होता है कि हमारे जैन धर्म में कहा है कि उस समय में हमारे कर्मों का बंधन होता है। वैष्णव धर्म में ऐसा कहा जाता है कि संधिकाल के समय में परमात्मा भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। सिखों के दरबार में भी 6 बजे के समय में क्या हो जाती है, अरदास शुरू हो जाती है। और जो मुसलमान भाई हैं वो भी 6 बजे के समय में नमाज अदा करते हैं। हमारा आवश्यक भी एग्जैक्ट जब सूर्य अस्त होने लगता है, और वही समय हमारे प्रतिलेखन का है, प्रतिक्रमण का है, परिलेहन का है कि हमने हमारे सुबह से जो कर्मों के बंधन किए हैं उसका सॉरी बोलने का टाइम भी 6 बजे का है। सभी धर्मों की प्रोसेस एक जैसी है, बस अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग गाथा है, कभी कविता में है, शायरी में है, श्लोक में है, अलग अलग भाषा में है, परंतु सबका विजन, सबका लक्ष्य एक ही है कि प्रकृति के प्रति हम क्या हो जाए, नतमस्तक हो जाए, प्रकृति के प्रति हम ऋणी हो जाए, प्रकृति का आभार व्यक्त करें।
जिन जिन लोगों का मुझे सहयोग मिला है मैं उसके प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा बहुत ही सुंदर सा पाठ आता है प्रतिक्रिया के बाद में, खामे में सवे जीवा सवे जीवा कमन में मिट्टी में सब हुए सु बेरा मजन के नहीं आपने सुना होगा घानी का जो बेल होता है उसकी आंखों पे एक पट्टी लगाई जाती है और वो दिन भर घूमता है उसे ही नहीं पता उसने कितने चक्कर लगाए हैं। पर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी हम फरमाते हैं कि हम उस घानी के बेल की तरह इस 84 लाख योनि में हमें चक्कर लगाना नहीं है। प्राणातीत पांच से हमें दूर रहना है और अगर दोष लगा है तो उसका बार बार मिच्छामितुभ्रम देना है। हमारे यहाँ पर जो सामने भाई बैठे हैं उन्होंने कल भी प्रॉमिस लिया है महाराज साहब मैं रोज 2 लाइन जरूर याद करूंगा। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं 2 लाइन रोज ले जा सकते हैं, रोज याद करना है। याद नहीं हो तो कम से कम पढ़ना सीखना है, कम से कम हमारे साथ में वो हमारी क्या हो जाएगी पूंजी हो जाएगी। घानी के बेल की तरह इस संसार में क्या नहीं लगाना है बंधुओं, चक्कर नहीं लगाना है। बस हो गई अभी ये यात्रा, अब इस यात्रा के लास्ट में क्या ठोकना है, अल्प विराम दे देना है, इसको यहीं पर बंद करना है। अब अगला जन्म हमें महावीर क्षेत्र में लेना है। यही प्रार्थना के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी।